Haider Ali Rimbai left out to be felicitated as ex-state panel umpire. Haider Ali Rimbai, a veteran and sportsman from Dima Hasao and a service-minded state panel umpire for over 15 years, was left out of a recent felicitation event by the Assam's Cricket Association in June at Guwahati, leading to deep disappointment and feelings of humiliation for him and the umpiring community. The Assam's Cricket Association organized a ceremony in Guwahati to honor ex-state panel umpires and recognize their long-standing contributions to cricket officiating in Assam. While several umpires were celebrated during the program, Haider Ali Rimbai was notably absent from the list of those felicitated, sparking dismay among observers and cricket enthusiasts in the region. Haider Ali Rimbai's umpiring career spans over 15 years, during which he officiated numerous matches and contributed significantly to cricket development in Dima Hasao and Assam. Upon learning he was not included in the honor roll, Rimbai expressed that being overlooked felt like a humiliation for a state panel umpire who had dedicated so much service and effort, stating that such neglect undermines the dignity of an officiating profession. उसने हाल ही में मुझे पता चला कि असम क्रिकेट एसोसिएशन ने अंपायर्स को, स्टेट पैनल अंपायर्स लोगों को 60 ईयर्स अबव का उन लोगों को माने ये किया गया, फेलिसिटेशन किया गया। इसमें मेरा साथ जो मैक्सिमम माने ये अंपायरिंग किया है वो अभी गुजर गया, तो उनका परिवार से मुझे फ़ोन किया कि आप क्या गुवाहाटी नहीं गया, आपको नहीं बुलाया क्या? तो मैंने कहा तो मुझे तो पता नहीं है। बोला ये तो जून महीना का 25 तारीख को माने ये फेलिसिटेशन हो चुका है अराउंड 50 अबव माने पर्सनस को। तो मेरा ये कहना है कि मेरा पास इतना सर्टिफिकेट है। मैं 1982 से 1999 17 ईयर्स हमने सर्विस दिया असम क्रिकेट एसोसिएशन का एज ए पैनल अंपायर। उसका ऊपर में हमने बहुत माने ये क्या बोलते हर सर्टिफिकेट मेरे साथ मौजूद है। Members of the local sports community and supporters from Dima Hasao voiced concern over these omissions, noting it diminishes the morale of officials who serve in challenging conditions for the growth of cricket in Assam. Many highlighted the need for more inclusive recognition, emphasizing that sports administration must extend appreciation to dedicated veterans like Haider Ali Rimbai in future events. The incident has sparked important conversation about how sporting bodies recognize contribution of officials, and it's hoped that expression of disappointment will prompt the Assam's Cricket Association to ensure that all deserving officials, including Rimbai, are fairly acknowledged going forward. हेमंत विश्व शर्मा जो प्रेसिडेंट था, हाँ, उसी के टाइम में मैंने आपका ये प्रदीप वर्ग है, उसने भी मुझे सर्टिफिकेट दिया। इसके बाद में राणा गोस्वामी ये एक्स सेक्रेटरी है, बहुत पुराना एक्स सेक्रेटरी, और ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, उसने भी मुझे सर्टिफिकेट दिया। इसका बाद आपका मैंने वो अंपायर सेमिनार हुआ 1994 में 8 और 9 को। उस टाइम में गौतम राय मैंने प्रेसिडेंट था, तो सहजानंद जो सेक्रेटरी था, उस वक्त भी मुझे ये सर्टिफिकेट है। इसका बाद में सहजानंद ओझा ने मुझे दिया कि 1983 को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मुंबई से असम को मैंने 20 जून को अंडर 16 एंड अंडर 19 का मैंने कोचिंग कैंप को 45 डेज़ का मैंने अलॉटमेंट दिया। लेकिन असम स्टेट में कोई डिस्ट्रिक्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस वक्त 1983 को। तो सहजानंद ओझा ने मुझे बुलाया। मैं उस वक्त हाफलोंग का जॉइंट सेक्रेटरी क्रिकेट एसोसिएशन का था, क्रिकेट एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी था, डीएसए का भी जॉइंट सेक्रेटरी था मैं। तो मुझे बुलाया, मैं गुवाहाटी गया। जाने के बाद में बोला, हैदर भाई तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कुछ तकलीफ़ है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट अभी माने पीसफुल है, तो आप ये माने 45 डेज के लिए आप माने ये कोचिंग कैंप लीजिएगा। तो मैंने आकर जेके थाउसेन साहब उस टाइम में अभी गुजर गया, जेके थाउसेन साहब के साथ में कंसल्ट किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा मेंबर्स हॉस्टल है, अभी जो लैंडमार्क होटल है वो मेंबर्स हॉस्टल था। तो मेंबर्स हॉस्टल ठीक है, हम लोग को यहाँ में प्रोवाइड कर देगा सब प्लेयर्स को, और ये क्या बोलता यहाँ में हम लोग कर सकता है, तो तुम क्या बोलता है? तो हमने बोला जो ठीक है, आप यदि कहते हैं तो हम लोग कहेंगे। तो सहजानंद ओझा को मैंने ग्रीन सिग्नल दे दिया। तब उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मैंने ये कर दिया जो हमारा हाफलोंग में होगा। तो अकॉर्डिंगली हाफलोंग में 45 डेज़ का मैंने ये हुआ है, कोचिंग कैम्प हुआ है अंडर 16 एंड अंडर आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा 5 स्टेट का अंडर 16 एंड 19।
तो इसी में हमने माने कोचिंग को माने वो अभी भी असम में एक प्लेयर है, मुझे अच्छा से याद है, राजेश बोरा नाम है, असम स्टेट का। तो वो भी अंडर 19 का था यहाँ में हाफलोंग में। तो 19 में वो भी माने हमें कोचिंग लिया। तो उसको वो भी प्रूफ है कि हमने इसमें माने 45 डेज उन लोगों के साथ में उन लोगों को जॉगिंग कराने में मिनिमम 15 किलोमीटर जॉगिंग कराता था, हाँ, सुबह को। और यह उसका कोचिंग में मेन कोच था माने बॉम्बे से MP परमार, और उसका असिस्टेंट कोच था डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रणब बरुआ। और मुझे भी रखा गया। मैं उन लोगों का, मुझे परमार ने जिम्मा दे दिया कि उन लोगों को जॉगिंग कराना मिनिमम 15 किलोमीटर डेली इन लोगों को लेके। तो इसका अंदर में भी बहुत कहानी है, उस सब में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो फिर 45 डेज किया, ठीक है। इसके बाद में स्वाजानंद ने मुझे सर्टिफिकेट दिया, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया, जो मैंने ऐसे किया। तो यानी कि हमारा माने बहुत यह है अवदान है आसाम क्रिकेट में, हाँ। लेकिन हमको माने कभी भी उन लोग को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, रिकॉग्नाइज तो किया ही नहीं है, और हमारा नाम और निशाना भी मिटा दिया उन लोग। तो यानी कि मैं सोचता हूँ कि हमारा डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट से एकमात्र हम ही है जो माने पूरा डिस्ट्रिक्ट में। तो उससे हमारा भी नाम और निशाना उन लोगों का माने मिटा दिया। तो क्यों मिटा दिया, इसका पीछे क्या कॉन्स्पायरेसी है, वही मैं जानना चाहता हूँ। मेरा दुख वही है कि मुझे क्यों सबका फेलिसिटेशन करा 60 अबव सबको का। और मेरा अभी उम्र 76 है, आप लोग तो मालूम ही है। तो मैं तो अभी इंटरनेशनल टेनिस भी खेल रहा हूँ, आपको मालूम है, अभी तक खेल रहा हूँ। तो मैं फिट फाट हूँ, मगर मेरा नाम माने कहीं से भी नहीं आया। तो वही मेरा दुख है यार, क्या, हाँ, दुख लगा कि इतना कुछ है। तो कोई बात नहीं, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन आम माने पूरा स्टेट को, पूरा आम जनता को मालूम होना चाहिए कि आसाम स्टेट से किस तरह का हमारा साथ दोहरा माने सलूक कर रहा है हम डिमा हसाओ वासियों के साथ, हाँ। नहीं तो हमें क्यों नहीं बुलाया गया? अगर बुलाया भी है किसी का जरिए, तो क्यों उन लोगों ने हमें इत्तला नहीं किया? हाँ, तो यही है एक माने कॉन्स्पायरेसी, मैं इसके पीछे देख रहा हूँ। बस यही मैं। आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि क्यों मेरा नाम माने ये पैनल से माने क्यों मेरा नाम निशाना मिट गया, क्यों डिलीट हो गया? ये आसाम क्रिकेट एसोसिएशन को ये फाइंड आउट करना चाहिए, हाँ, कि डिमा हसाओ में एक अंपायर ऐसा 17 ईयर्स करने के बाद में, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद में भी उसका नाम क्यों नहीं आया? मुझे फेलिसिटेशन नहीं चाहिए, लेकिन मेरा नाम तो उन लोगों के बीच में होना चाहिए ना। तो उन लोग क्या किया है, वही जानना मैं चाहता हूँ।